Hello everyone. Today in chapter 8 plants we will discuss the remaining topics leaves, flowers and pollination. Leaves are the most important part of a plant. Leaf consists of different parts. First is of petiole. It is the stalk of leaf and it attaches the leaf to the stem or branch. Lamina, also called as leaf blade. The flat part of the leaf we call it as a lamina, and this lamina contains veins and the veinlets that provide rigidity. जो ये लेमिना होता है इसी के अंदर वेन्स होती हैं और ये क्या करती हैं लीफ को रिजिडिटी थिकनेस प्रोवाइड करती हैं एंड हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेप साइज एंड अदर स्ट्रक्चर्स. आता है वेन्स, pipe-like channels that run throughout a leaf or thread-like structure in the leaves, we call it as a veins. Venation, the pattern of veins or arrangement of veins on the lamina of a leaf, we call it as a venation. Midrib, it is the main thick central vein. Types of venation. Venation are of two types. One is reticulate venation and the second is parallel venation. Reticulate venation, veins which are arranged in a net-like pattern on a leaf, we call it as a reticulate venation. इसमें example आता है people leaves. Whereas parallel venation, veins that run parallel to one another from the base to the tip of the leaf, we call it as a parallel venation. जिसके अंदर parallel run कर रही हैं veins वो कहलाएगा parallel venation और जिसके अंदर net-like appearance है उसमें कहेंगे हम reticulate venation. Parallel venation में example आता है wheat leaves है, मेज की लीफ है. Functions of leaves. First is of transpiration. Transpiration means loss of water from the surface of leaf. We call it as a transpiration. And in the leaf's lower portion or lower part, stomata are present, which helps in the leaves or the plant to breathe. Second is of photosynthesis. Green leaves can prepare food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. This process we call it as a photosynthesis. So leaves prepare the food for the plant. Third is of reproduction. Some leaves of the plants helps in the reproduction also. Likewise bryophyllum leaves है, it give rise to a new bryophyllum plant. Bryophyllum की जो लीफ होती है उसी से नया bryophyllum plant भी उगाया जा सकता है, तो reproduction में भी help करती है. Modification of leaves. Like root and stem, leaves are also modified. First आता है इसके अंदर leaf tendrils. Leaf tendrils exist in plants with weak stem. जो weak stem वाले plant होते हैं उसके अंदर leaf tendrils होते हैं. अब होते क्या leaf tendrils? उसमें क्या होता है the leaves get modified into thread-like structure. We call it as a tendrils. These tendrils climb a nearby stick or wall and provide support to the plant. आपने देखा होगा पी प्लांट है, ग्लोरी प्लांट है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जो क्या है टेंड्रिल्स, और वो उसको हेल्प कर रहा है स्टिक से या वॉल से सपोर्ट लेकर. सेकेंड लीफ मॉडिफिकेशन आता है लीफ स्पाइंस. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो होली या पार्शियली पूरी पूरी मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइंस. एंड द फंक्शन क्या होता है इस स्पाइंस का, आर यूज्ड फॉर डिफेंसिव पर्पस एंड रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. एग्जाम्पल है प्रिकली पियर एंड कैक्टस. थर्ड मॉडिफिकेशन इज स्केल लीव्स. स्केल लीव्स क्या होती है, दीज आर थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, विदाउट स्टॉक, स्टॉक नहीं होता है, ब्राउनिश होती है या कलरलेस होती है अपीयरेंस में. इसका एग्जाम्पल है आपका ओनियन. फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है यंग बर्ड को व्हेन दे एनक्लोज, जब उसके अंदर यंग बर्ड एनक्लोज होता है स्केल लीव्स के अंदर. और ये साथ में लीव्स जो होती है ओनियन की फ्लैशी होती है, थिक होती है और वाटर और फूड को स्टोर करने का भी काम करती है. फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा जो मिलकर के बनाता है पिस्टिल या जो उसका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर एंड फिलामेंट मिलकर बनाता है स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसी के साथ में होती है पेटल्स, सेपल एंड रिसेप्टिकल. सेपल्स, the outermost layer of a flower. This protects the flower in the bud stage and later protects the fruit. जो फ्लावर का outermost layer होती है वो कहला देती है सेपल्स, प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को बड स्टेज में और बाद में प्रोटेक्ट करती है फ्रूट्स को.
पेटल्स, पेटल्स होती हैं ब्राइटली कलर्ड पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स द इनर सरफेस ऑफ अ फ्लावर एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ब्राइट में कलर में होती है, प्रोटेक्ट करती है इनर स्ट्रक्चर फ्लावर के और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। स्टेमन, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ flower. It consists of anther and filament. The upper flat part of stamen we call it as a anther, whereas the long stalk we call it as a filament. Still, it is the female reproductive of a organ of a flower. It consists of stigma, style, ovary. पिस्टिल, पिस्टिल जो होता है वो उसकी फ्लास्क जैसा शेप होता है, लोअर सोलन पोर्शन होता है जिसके अंदर होती है ओवरी, और इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ही होते हैं स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं ओव्यूल्स। स्टाइल होता है द ट्यूब लाइक मिडिल पार्ट, दिस वन वी कॉल इट एज अ स्टाइल। स्टिग्मा, द अपर मोस्ट पार्ट जो होता है और स्टिकी होता है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, इट मेक्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन सैक ऑफ द स्टेमन स्टिक टू इट एंड हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर। वेयरएज पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फाइन पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलते हैं पोलन सैक के अंदर। पॉलिनेशन, अब फ्लावर को डेवलप करने में, फ्रूट में या उससे सीड्स बनने के लिए ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर की ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज ए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो मेनली होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के द्वारा, वाटर, एनिमल्स एंड एयर्स। तो दीज ऑल आर द मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स में कैसे होता है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनकी स्मेल जो होती है स्वीट स्मेल होती है, मीठी खुशबू होती है, तो वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, जैसे कि आपका बीज है। सो व्हेन दीज इंसेक्ट सिट ऑन द फ्लावर द पोलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी, जब भी कोई फ्लावर के ऊपर बैठा इंसेक्ट तो वो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं एंड मे गेट रब्ड ऑफ, रब्ड हो जाते हैं व्हेन इट सिट्स ऑन द अनदर फ्लावर। तो दिस हेल्प्स इन पोलिनेशन। उसमें क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए एंथर से स्टिग्मा तक, तो ये हुआ पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। नाउ सीड, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब टेक्स प्लेस हो जाता है आफ्टर पॉलिनेशन, तो उसके रिजल्ट में क्या होंगे, ओव्यूल्स जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं सीड्स के अंदर। सीड क्या है, इट इज़ एन एनक्लोज्ड डॉर्मेंट एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट, दे आर फाउंड इन द फ्रूट्स व्हेन सोन एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज़ आपने सीड लिया, जनरली मम्मी जैसे किडनी बीन है, ग्राम सीड है, उनको क्या करती है, वन नाइट बिफोर सोक कर देती है एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स स्वेलन, वो फूल जाता है। तो आप उसमें से उसकी इजीली क्या कर सकते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। एंड व्हेन यू रिमूव दिस सीड कोट, सीड कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, और वो दोनों पार्ट्स वो क्या कहलाते हैं उसके, कोटाइलेडन्स। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि दे आर ऑफ, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलेडन्स। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसमें एक ही कोटाइलेडन होता है तो उनको हम बोल देते हैं मोनोकॉट्स, वेयर एज कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर दो कोटाइलेडन्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं डाइकॉट। अब ये कोटाइलेडन का वर्क क्या होता है, ये कोटाइलेडन क्या करता है, इट स्टोर द फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि क्या है, बेबी प्लांट है, उस बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है और उसी के साथ में सीड के अंदर उसको प्रोटेक्शन का काम भी करता है। लास्ट इज ऑफ फ्रूट। In flowering plants, the ovaries ripen into matured fruits, which are either dried up or fleshy, containing the seed inside. And pericarp is that forms the outer covering of the mature ovary. या pericarp को आप कह सकते हैं सीड का वेसल है, या modified walls जो होती है ओवरी की उसको हम बोल देते हैं pericarp. This is all about the plants in this one chapter. Thank you.